સીધા જ જઈએ વારાણસી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ગયા છે। આજે કાશી વિશ્વનાથનો જે કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો છે તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ લોકાર્પણ થવાનું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે વારાણસી પહોંચી ગયા છે ત્યારે તેમણે સૌથી પહેલા કાલ ભૈરવના દર્શન કર્યા અને પૂજા અર્ચના કરી, સાથે જ આરતીનો પણ લહાવો લીધો। મોટી સંખ્યામાં અત્યારે વારાણસીમાં કાશી વિશ્વનાથનું જે લોકાર્પણ થવાનું છે તેને લઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। સાથે જ 400 સાધુ સંતોની સાથે આ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। કેટલાક મહાનુભાવો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। 20 મિનિટનું જે મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે, શુભ મુહૂર્ત છે, તેમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। મુહૂર્ત કયું છે એની વાત કરીએ તો 1:37 થી 1:57 આ જે શુભ મુહૂર્ત છે તેમાં તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર જે ભવ્યાતિ ભવ્ય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ જેને કહેવાતો હતો તે તૈયાર થઈ ગયો છે અને આખરે હવે તેનું લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વારાણસી પહોંચી ગયા છે અને અત્યારે નજારો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમામ જે જગ્યાઓ છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે જાતે જ, અને ત્યાં આગળ જે જગ્યા બનાવવામાં આવી છે, આ જે કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો છે ત્યાં નાના મોટા અલગ અલગ મંદિરો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે। સાથે જ ત્યાંથી સીધા જ ગંગાના દર્શન કરી શકે તે પ્રકારનો આખો કોરિડોર તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરની જો વિશેષતાની આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે કાશી વિશ્વનાથ ધામ 700 કરોડમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે જેને ભવ્યાતિ ભવ્ય આકારની આપીને આ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી ખુદ આજે વારાણસી પહોંચી ગયા છે અને તેમના હસ્તે આ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે 39,000 વર્ગ મીટરનો લલિતા ઘાટ સુધીનો કોરિડોર આ તૈયાર કરાયો છે। કોરિડોરમાં કુલ 23 ભવનનું નિર્માણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। જે લોકો કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરની મુલાકાતે આવે છે તે લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીને આ તમામ કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો છે। તો સાથે જ પરિસરમાં મંદિર ચોક પણ બનાવાયો છે। મુમુક્ષુ ભવન, વૈદિક ભવનની સુવિધા પણ કરવામાં આવી છે। મંદિર પરિસરથી 450 મીટર લાંબો ગંગા કિનારો અહીંયાથી દેખાય છે, એટલે ભવ્ય દ્રશ્યો અહીંયાથી દેખાય તે પ્રકારનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કાશી વિશ્વનાથ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ, કાશીની કાયા પલટ કરનાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જેમણે આજે કાશીવાસીઓને એક દિવાળી, ફરી બીજી એક દિવાળીનો મોકો આપ્યો છે। કાશીના લોકોનું કહેવું છે કે આજે એક મોકો એવો મળ્યો છે જ્યાં દિવાળી જેવો જશ્ન મનાવવામાં આવશે। સાથે જ જે જેટલા પણ લોકો છે જે કાશીમાં રહે છે એ તમામ લોકો 3 દિવસ સુધી પોતાના ઘરની બહાર દીવો કરશે, એટલે કહી શકાય કે દ્રશ્યો અદ્ભુત હશે। જોવા જેવા જે દ્રશ્યો હશે કે આખા કાશીમાં દિવાળીનો માહોલ જોવા મળશે। ઘરની બહાર, દરેક ઘરની બહાર એ જ્યોત જોવા મળશે। મણિકર્ણિકા ઘાટ પર ઓપન એર થિયેટર બનાવવામાં આવ્યું છે। વિકલાંગ શ્રદ્ધાળુ માટે રેમ્પ અને ગોલ્ફ કોર્ટની પણ સુવિધા કરવામાં આવી છે। ગંગા કિનારેથી મંદિર સુધી પહોંચવા માટે 2 પ્રવેશદ્વાર છે, જેથી કરીને અત્યારે દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો સીધા જ વારાણસીથી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। જે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા પહોંચ્યા છે। જો કે મંદિર પરિસરમાં તો માત્ર 400 સાધુ સંતો સાથે જ પરવાનગી આપવામાં આવી છે, પરંતુ અત્યારે જે લોકો બહારથી આવી રહ્યા છે, જે પ્રધાનમંત્રી મોદીને જોઈ રહ્યા છે, એ લોકોનું અભિવાદન પ્રધાનમંત્રી મોદી ઝીલી રહ્યા છે। यहाँ पर आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। गंगा मैया ने उन्हें जिस के जो विरासत है, जो लोग यहाँ के लोग हैं उनको कैसे सहूलियत हो सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए। चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो रैंप हो, गंगा के स्थान तक जाने के लिए, गंगा नदी तक जाने के लिए, माँ गंगा के तट तक जाने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाए, जिससे लोगों को एक सहजता हो, आसानी हो, गंदगी ना दिखाई पड़े। जो गंदगी पहले माँ गंगा में गिरती थी उसको हटाया गया है, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई और ऐसे ही विकास कार्यों को जमीन पर उतारने का जो काम किया गया है, उनमें से एक तिलकिया घाट, जहां पे वाराणसी में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो संवाद करते हुए एक भाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि निश्चित तौर से किस प्रकार से जो काम का एक बिगड़ा उठाया गया था
वो बीड़ा कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। और ये खूबसूरत छटाएं इस बात की साफ तौर से द्योतक हैं, इस बात को इंगित करती हैं कि जो विकास की एक परिकल्पना की गई थी, जो पहले कागजों पर उकेरी गई थी, आज वो जमीन पे साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। और जब वो कोई काम जमीन पे होता है तो एक भाव चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक संतोष का भाव कि जो मैंने सोचा था उसमें से काफी कुछ काम यहाँ पे होता दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में उस क्षण की एक तरीके से तस्वीरें हैं जहां पर इन तमाम विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया। और आज वो घाट जो पहले कभी बहुत ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। आज इस बात का अर्थ समझ में आ रहा है। मां गंगा ने गंगा के घाट पे किस तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी, उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध हैं। वहां की वो चट्टी पे, वहां पे वो जेट्टी पे मौजूद है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और इसमें यहाँ पे वो उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं। और ये अपने आप में माइन्यूटली हर चीज को बहुत बारीकी से समझना कि जो हमने खाका खींचा था विकास का, जो लोगों को सुविधा हो सके, जो आसानी हो सके, जो व्यवस्थाएं तैयार करने की बात थी, क्या वो सच में उसी रूप में निकल के आई है, क्या वो उसी रूप में स्थापित हुई है। और ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उस तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हुए और काशी की जो एक विस्तारित जो दिव्यता भव्यता है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त जिस क्रूज में जा रहे हैं उसका नाम अलकनंदा है। और अलकनंदा भी अपने आप एक नदी का नाम है। और ऐसे तमाम चीजों को बहुत बारीकी से सहेजा गया है ताकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजा जा सके, चाहे वो नाम रखने को लेकर हो या किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर हो। तमाम लोग भी यहाँ पर इस क्रूज में मौजूद नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद इस क्रूज के माध्यम से नज़ारा लेंगे, देखेंगे, तमाम घाटों का अवलोकन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये इस बात का वो निरीक्षण भी करेंगे कि जो एक परिकल्पना ली गई थी एक विस्तारित कार्यक्रम को लेने के लिए, क्या वो सच में उस तरीके से मूर्त रूप में हो पा रही। क्योंकि जो पहले फेज का काम है वो अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या वो सच में पूरी तरीके से पूरा हो गया है या अभी उसमें कुछ और काम बाकी है। इस प्रकार की तमाम और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां मौजूद होना और तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना और निरीक्षण करना, समझना कि आखिर और इसमें क्या विकास के नए आयामों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब जो एक कोशिश की गई है वो कोशिश ये है कि जो काशी को क्योटो बनाने की जो बात थी, यानी चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे एक वैश्विक नगरी बनाने की बात हो, वैश्विक सुविधाओं के साथ जोड़ने की बात हो, या विश्व स्तरीय जो एक आयाम होते हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, वैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो। लेकिन मूल आधार जो है काशी का, जो शिव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं सहेजा जाए, संरक्षित रखा जाए। उस भावना से जरा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं। तो निश्चित तौर से इस प्रकार की जो इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, उसको जमीन पे उतारने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीरें निश्चित तौर से तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो काशी को दशकों से, सदियों से जानते हैं, समझते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में किया था वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आज़ादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीज़ें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो,
हो, सुंदरीकरण के तौर पे हो, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है, किसी व्यक्ति के लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहाँ पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नज़र इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त। ઉત્તર પ્રદેશમાં વધુ એક વિકાસનું કાર્ય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરશે। શુભ મુહૂર્તમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। તમામ લોકો માટે ખાસ સુવિધાઓ પણ અહીંયા કોરિડોરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે। આપણી સાથે સતત જોડાયેલા છે અપડેટ આપવા માટે સંવાદદાતા અજય યાદવ। અજય, તમામ સુવિધાઓનું ધ્યાન રાખીને આ કોરિડોરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। ભવ્યાતિ ભવ્ય કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યું છે કાશીમાં।
निश्चित तौर पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अलकनंदा क्रूज के जरिए बनारस के घाटों का अवलोकन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले के जो घाट हुआ करते थे उसमें कितने बड़े चेंजेज आ गए हैं। खास करके अलकनंदा जो क्रूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस बात की भी निशानी है कि पहले जो सिर्फ हाथ से चलने वाली नावों के रूप में बनारस जाना जाता था, वहाँ पे अब क्रूज चल रहे हैं, रोरो सर्विस चल रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े शिप भी चल रहे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक न सिर्फ माल ढुलाई का काम कर रहे हैं, बल्कि गंगा के जल का पूरा ट्रांसपोर्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका भी कहीं न कहीं सबूत है। जिस क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है जहां पे अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद, वो पूरा सफर आप देख सकते हैं कि पहले जितने लंबे क्षेत्र में कहा जाता है कि करीब 13 से 14 किलोमीटर का जो इलाका है, नदी के किनारे बसा हुआ बनारस शहर है, वहां पर घाटों को जिस तरह से पुनरुत्थान किया गया है या उसका जीर्णोद्धार किया गया है, वो कहीं न कहीं इस बात की निशानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है उसमें कितना परिवर्तन आया है। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जैसी सोच रखी थी पूरे बनारस के बारे में, उसका चेहरा बदलने के बारे में, वैसा पूरा बनारस बदल चुका है। घाट एकदम उसी तरह से हो चुके हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि क्योटो की तर्ज पे बनारस को भी विकसित किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिन्होंने 7-8 साल पहले बनारस को देखा है, उसके घाटों को देखा है, उसमें जमीन और आसमान का सीधे तौर पे फर्क नजर आ रहा है। घाट और घाट से लगी हुई सीढ़ियां, तमाम तरह के जो तोरण हैं, वो सारे कुछ वहां पे बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इन कामों को लेकर के संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे पट्टियां भी लगाई गई हैं जहां पे काम पूरे नहीं है, और उसको देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ से भी तमाम सारे सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में ये पूरा जो काशी है उसका चेहरा और उसके घाट पूरे बदले नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस क्रूज सर्विस से जा रहे हैं, ये क्रूज अभी चेहरा बनारस का बना हुआ है और आप देख रही होंगे कि किस तरह से जो वाटर एम्बुलेंस है वो भी बनारस में चल रही हैं। प्रधानमंत्री के क्रूज के साथ जो नावें चल रही हैं वो भी एक तरह से ऑटोमेटिक हैं, पहले हाथ से चला करती थी। तो कई चेहरे बदले हुए हैं और जहां पे अभी प्रधानमंत्री जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वो काशी विश्वनाथ धाम भी है, वो पूरी तौर पे बदल चुका है। पहले 3000 स्क्वायर फीट में ही केवल इलाका था, लोग तंग गलियों के माध्यम से इस इलाके में, इस धाम में आते थे, लेकिन लोगों को काफी भीड़ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। करीब 900 करोड़ की लागत से इस पूरे इलाके को परिवर्तित किया गया है और खास करके काशी विश्वनाथ जो धाम है, इसका जो पूरा कॉरिडोर है या कह सकते हैं जो पूरा एरिया है, अब 5.25 लाख स्क्वायर फीट का फैल चुका है, जिसमें 125 मंदिर आते हैं। काफी खुला हुआ इलाका है, 4 उसके गेट बनाए गए हैं, जिसमें न सिर्फ मकराना के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, गुलाबी पत्थर, सफेद पत्थर, वियतनाम के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि बनारस के मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है उसको भी बनाए रखने की कोशिश है। और कुल मिला के पूरा इलाका जो काफी सुंदर हुआ है। खास करके जो काशी विश्वनाथ का जो धाम है वो काफी बड़े इलाके में फैला है। सीधे नदी से सीढ़ियों के माध्यम से आप इस धाम में जा सकते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से जो पूरा कॉरिडोर है जिसका अवलोकन काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, वो इलाका भी कह सकते हैं घाटों से सटे हुए जितने भी इलाके हैं उसको भी काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2019 में एक तरह से इसकी आधारशिला रखी गई थी और माना जा रहा था कि 3-3.5 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन 32 महीने के कार्यकाल में काफी काम पूरा हुआ है और जिसका अवलोकन या कह सकते हैं कि आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल बनारस की जनता जो पहले तंग गलियों में रहती थी, हालांकि तब भी बम बम भोले का नारा अपना लगाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से बनारस के सांसद बने हैं तब से बनारस का चेहरा काफी कुछ बदला है। न सिर्फ इसको 2-2 स्टेशन के चेहरे बदल गए हैं, काफी साफ सफाई देखने को मिलती है। जो पार्किंग एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत बने हैं। यहाँ तक कि मड़ुआडू स्टेशन, जिसे अब बनारस स्टेशन कहा जाता है, देश के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में से एक अब पाया जाता है। और इसी तरह से बनारस की गलियाँ जो काफ़ी तंग हुआ करती थी उसको भी एक अलग रंग दिया गया है, गलियों को भी काफ़ी पक्का किया गया है, सड़कों को पक्का किया गया है। जो तार जगह जगह बिखरे हुए थे उन तारों को भूमिगत किया गया है। यहाँ तक कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो नाले जो बनारस के गंगा नदी में गिरते थे, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी काफ़ी बेहतर बनाया गया है ताकि एक साफ सुथरा पानी गंगा नदी में गिरे, न कि पूरे बनारस का कचरा उसमें गिरता हुआ नजर आए। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से काफ़ी बेहतर हुआ है बनारस का घाट। और खास करके आप जहाँ से प्रधानमंत्री ने अभी अपनी यात्रा शुरू की है
वहाँ से अगर आप देखेंगे कि 13 से 14 किलोमीटर तक लगातार घाटों को पक्का किया गया है। घाट करीब करीब पानी तक उतर आए हैं। हालांकि ये जो वक्त है तब गंगा का पानी जो है काफ़ी नीचे चला जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तब गंगा का पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो ऊपर जब पानी आता है उसके लिहाज से ये घाट बनाए गए हैं, यानी बरसात के मौसम में अगर इन घाटों को देखेंगे तो और भी खूबसूरत गंगा दिखेगी। तो फिलहाल आगे के अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, बल्कि जो पूरा कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे से 6 बजे के करीब जो गंगा आरती होती है उसमें शिरकत करने के लिए आएंगे। फिलहाल अभी क्रूज सर्विस का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन जब वो बरेका जो होटल है, बरेका जो हॉस्टल है एक तरह से जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं, वहाँ से जब शाम को आएंगे तो रोरो सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिप का प्रयोग हो रहा है, क्रूज का प्रयोग हो रहा है, रोरो सर्विस का प्रयोग हो रहा है, नावें ऑटोमेटिक हो गई हैं, पूरे नदी में एम्बुलेंस चलती हुई, जो वाटर एम्बुलेंस है वो चलती हुई नजर आती है। तो बनारस का चेहरा बदला है, लोग संतुष्ट है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लोगों में गौरव भान भी है। और पूरा चेहरा जो बदला है इससे निश्चित तौर पे बनारस की जनता भी संतुष्ट है। लेकिन लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जो काम लगातार कर रहे हैं उससे संतुष्ट होते हुए भी अभी और ज़्यादा आगे जो बनारस को काम करना है वो भी करेंगे। तो ऐसा लोग उम्मीद भी रखते हैं। तो कुल मिला के बनारस का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहते काफ़ी कुछ बदला है। 7-8 साल पहले जो चेहरा था वो चेहरा अब बनारस का नहीं है। इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के भी जयकारे लगते हैं, और जय जय, और जो काशी विश्वनाथ भोले विश्वनाथ हैं उनका तो नारे लगते ही हैं। जी, કે કાશી હવે ક્यूटो बनતું દેખાઈ રહ્યું છે। અજય हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपके पास से आगे जानकारी भी लेते रहेंगे। તો કાશીનો વિકાસ તેની શોભામાં 4 ચાંદ લગાવી રહ્યું છે। માં ગંગા સુધી પહોંચવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ પ્રયત્નો કરીને આજે આ પ્રોજેક્ટને સફળ બનાવ્યો છે। આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરવાના છે। તેમના હસ્તે આ લોકાર્પણ થશે, જેના માટે તમામ તૈયારીઓ સંપૂર્ણ રીતે થઈ ગઈ છે। શુભ મુહૂર્તમાં આ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે અને ખુદ પ્રધાનમંત્રી વારાણસી પહોંચી જે તમામ સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે અત્યારે તેની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે। સાથે જ તમામ રીતે જે લોકો પણ અહીંયા પહોંચે છે, જે ગંગા નદીની મુલાકાતે પહોંચે છે, જે પણ ભક્તો ત્યાં ગંગાના ચરણે પહોંચે છે, તેમને વોટર એમ્બ્યુલન્સ, રોડ, રેલવે, વોટર, એર કનેક્ટિવિટી તમામ સુવિધાઓ અહીંયા ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે પ્રકારની અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। દ્રશ્યો અહીંયાથી દેખાઈ રહ્યા છે, જે ક્રૂઝમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે સવારી કરી રહ્યા છે। તે ક્રૂઝ અલખનંદા એટલે કે ગંગામાં જ્યાં અત્યાર સુધી ત્યારે હાથથી જે હોડીઓ ચાલતી હતી, એક કાશી, એક ગંગા, એ નદી અત્યારે અપડેટ થઈ ગઈ છે। અપડેટ વર્ઝન તમે અત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો, અને આ દેન ભારત સરકારની, કેન્દ્ર સરકારની, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જે આજે કાશીને મળી છે।